Welcome to you all. Principle of inclusion, exclusion, and number of onto maps. The principle of inclusion and exclusion is a counting technique to find number of elements in the union of sets by subtraction of repeated elements and addition of repeated subtracted elements. Subtracted elements. Let A, B and C are three sets and NA, NB and NC are the number of elements in these sets. Then number of elements in the union is N A union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B. Here NA, NB, AB. NA contains this one. NB is that one. NA plus NB in there is repetition of the intersection. Intersection में एलिमेंट रिपीटेड काउंटिंग हो गया तो उसको हम घटाते हैं. यही एक्सक्लूजन है. इंक्लूजन एक्सक्लूजन. सिमिलरली N A union B union C is equal to NA plus NB plus NC minus N A intersection B minus N B intersection C minus N C intersection A plus N A intersection B intersection C. यानी इसमें पहले एलिमेंट्स जोड़े गए लेकिन जो रिपीटेड है उनको सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में कॉमन वाला फिर से एडिशन करना पड़ा, जोड़ना पड़ा. यही मेथड ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, यानी रिपीटेड काउंटिंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को ऐड करते हैं. ये PIE यानी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एक एग्जाम्पल है. इसी तरह से उसकी काउंटिंग टेक्निक में टर्म बाय टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं. अगर इसमें देखा जाए वेन डायग्राम से देखें A इस सेट B ये सेट C A B C. NA contains the dotted elements. NB elements are denoted by horizontal line. NB. NC is denoted by plus. This one is denoted by plus. NA plus NB plus NC. NA plus NB plus there is repeated counting. So the intersection portion A intersection B and B intersection C is subtracted and C intersection A is also subtracted and then the mid portion is added. Means NA is this, NB in NB there is repetition of intersection B, so subtracted. In NC there is
repeated elements counted are this portion. This portion means C intersection A and this part, and if this part is added to intersection, then this is B intersection C, but the adjacent intersection portion is again then added to get the distinct number of elements की। ये मेथड आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसी का प्रयोग करके हम लोग एक सेट से दूसरे सेट में जितने ऑनटू मैप पार्शियल हैं उसकी संख्या हम लोग प्राप्त करते हैं। लेट am is equal to a1 a2 up to am and bn is equal to b1 b2 up to bn are two finite sets having m and n elements respectively. Let f from am to bn is a map. In case m is less than n, then no onto map is possible from am to bn. कोई भी onto मैप पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ कुछ कुर्सियां हैं, और लोगों की संख्या कम है, कुर्सियों की संख्या ज्यादा है, तो कभी भी सारी कुर्सियां भर नहीं सकती हैं, onto मैप पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर लोगों की संख्या कम है, कुर्सी ज्यादा है, तो onto मैप को तो सारी कुर्सियां फिल हो जाएं, तो सारा फिल नहीं हो सकता, तो ये onto मैप पॉसिबल नहीं। Therefore, onto map is possible only when m is greater than or equal to n. M is greater than or equal to n. The total number of possible elements, number of possible maps is n की पावर m, कुल मैप की संख्या। अब उसमें वे मैप्स हटाए जाएंगे जिनमें एक एलिमेंट कोडोमेन का छूट जाता हो, यानी इनटू कैटेगरी को हो, उनको हम माइनस करेंगे। वी शैल रिमूव द maps that leaves one element of codomain free. That leaves one element of codomain free. कोडोमेन का एक एलिमेंट छोड़ देता है। ऐसे मैप्स की संख्या कितनी हो जाएगी? n-1 की पावर m. The number of such maps is n c1 n-1 की पावर m. और इतने मैप घटाने में वे मैप दो बार घट गए जिसमें दो एलिमेंट छूट जाते हैं कोडोमेन के, तो उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। We have to add
have to add those maps which leaves two elements are codomain, which leaves two elements are codomain, that is nC2 n minus 2 की पावर है. So therefore number of possible onto maps बराबर n की पावर m माइनस nC1 n माइनस 1 की पावर m प्लस nC2 n माइनस 1 की पावर n माइनस 2 की पावर m प्लस माइनस एंड सो. इस तरह से ये नंबर ऑफ onto maps. Example: find number of onto maps from set of 4 elements to the set of 3 elements. आंसर क्या होगा? Here m is equal to 4, n is equal to 3. Therefore, number of possible onto maps is n की पावर m माइनस nC1 n माइनस 1 की पावर m प्लस nC2 माइनस प्लस एंड स्टार्ट इज इक्वल टू 3 की पावर 4 माइनस 3C1 n 3 और 3 माइनस 1 की पावर 4 प्लस 3C2 मीन्स 3C1 n ये 3 आ जाएगा 3 और n यानी 3 माइनस 2 की पावर है यानी 1 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 4 3 इंटू 16 और प्लस 3 यानी 84 माइनस 48 यानी कितने मैप्स? 36 मैप्स. Can be found. Similarly, to find number of onto maps from set of 5 elements to set of 3 elements. Find number of onto maps from set of 4 balls to the set of 3 holes. आंसर है m बराबर सेट ऑफ 4 एंड सेट ऑफ 5. 4 का ज्ञान कर चुके हैं. सेट ऑफ 5 पास m is equal to 5, n is equal to 3. Therefore, number of onto maps. Therefore, number of possible onto maps यानी 5 बाल को 3 गड्ढों में भेजना है तो कुल कितने तरीके हो जाएंगे? 3 की पावर 5 माइनस उन तरीकों की संख्या जिसमें एक बॉल छूट जाता है तो क्या हो जाएगा? 3C1
3 माइनस 1 की पावर, जिसमें 2 होल छूट जाए वो ऐड होंगे, 3c2 3 माइनस 2 की पावर 5 प्लस 2 होल छूट गए, 2 होल छूट जाए तो इसके इतने तरीके काउंट करो, है ना, इसकी काउंटिंग कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 5, 81 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 32 प्लस 3 माइनस 96 प्लस 3 246 माइनस 96 यानी 150 मैप्स कैन बी हंट। यानी आपके पास 5 गेंदें हैं, 5 गेंदें हैं अलग अलग कलर की और 3 होल हैं इसमें भेजे जाने। एक तो तरीका है कि कोई भी होल खाली न रहे, नहीं कुल मैप की संख्या हो जाएगी 3 की पावर 5, उसमें एक होल खाली रहेगा, पांचों गेंदे इन्हीं 2 होल में जा रहे हैं, कोई किसी जा रहा है कोई किसी जा रहा है, उनकी संख्या कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, लेकिन एक होल खाली होने के 3 तरीके हो जाएंगे, 3 सिंगल सब्ट्रैक्ट किया, उसी तरह से इसमें ऐड किया और इस तरह से काउंटिंग होगी 150 मैप्स। इसी तरह से डोमेन और कोड डोमेन में एलिमेंट की संख्या पता होने पर जो है हम ऑनटू मैप्स की संख्या आराम से निकाल लेते हैं और इसमें मेथड ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज करता है। तो इस तरह से मैप्स की संख्या हम निकालते हैं और अगर दोनों में एलिमेंट्स की संख्या समान हो, दोनों सेम सेट हो, तो उस ऑनटू मैप को परम्यूटेशन मैप कहते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग मैप की संख्या के बारे में और डिस्कशन जारी रखेंगे। थैंक यू।